Today we will start exercise 4A of chapter expansions for class 9th for ICSE from Salina Concise from question number 7. In question number 7, what they have asked? What they have given? A plus 1 upon A is given 6. We have to find A minus 1 upon E. And second part, we have to find A square minus 1 upon A square. These two things we have to find. First of all, as like A plus B is given, we have to find A minus B. So by using, yes कादिर, कौन सा फॉर्मूला बताया था जब A plus B given हो और हमें A minus B फाइंड करना हो? A plus B whole square minus 2AB becomes equal to A plus B whole square plus 2AB. This is the formula. In place of A, you have to write down A, and in place of B, you have to write down 1 upon A minus 2 in place of A, and in place of B, 1 upon E. ठीक है कादिर? Is it okay? Yes, sir. ये A से A कट हो गया, A से A कट हो गया. A plus 1 by A is given, that is 6. 6 square minus 2. A plus 1 by A we have, sorry, यहाँ पे माइनस आना था, मैंने गलत लिख दिया. माइनस आना था, सेम ही लिख दिया ना. A minus 1 upon A we have to find whole square plus 2. Now 6 square 36 minus 2. This 2 become minus 2 on this side now. What we get? A minus 1 upon A whole square. Now 36 minus 4. What we get? We get 32. Now square becomes square root. Then we get the value of A minus 1 upon A. And plus minus. जब भी स्क्वायर दूसरी साइड पे जाके स्क्वायर रूट बनेगा तो प्लस माइनस आएगा ही आएगा. ठीक है बच्चे? तो यहां से 32 के फैक्टर्स 4 इंटू 4 इंटू 2 A minus 1 upon A. तो प्लस माइनस 4 root 2 is the value of A minus 1 upon A. This is our first answer. Now, second part, we have to find A square minus 1 upon A square. Now, A square minus 1 upon A square. That is A square minus B square. A plus 1 upon A into A minus 1 upon A. A plus 1 by A की वैल्यू हमें 6 गिवन है और इसकी वैल्यू हमने कितनी फाइंड की है? प्लस माइनस 4 root 2. Multiply these two. What we get? 6 4s are 24. 24 root 2. That is our second part answer. That is A square minus 1 upon A square. Is it okay? Yes, sir. Now 8th sum is same. 8th sum में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सेम है. तो यहां पे हमें क्या गिवन है? 8th sum में A minus 1 by A is given. How much? That is given 8. What we have to find? First part, we have to find A plus 1 upon E. In second part, we have to find A square minus 1 upon A square. These two things we have to find. Again, A minus B is given. We have to find A plus B. Athar ji, good evening. Athar. Good evening, sir. 5 minutes late. Sorry, sir. गाड़ी निकल जाएगी अगर ऐसे लेट होता रहा. Sorry, sir. चलो कल से ध्यान रखना, ठीक है? A minus 1 by A 8, A plus 1 by A we have to find. तो यहां पे यस हासिनी, कौन सा फॉर्मूला यूज करें? बताइए जल्दी से. Sir, A plus B the whole square या minus 2AB becomes is equal to A plus B the whole square A plus minus 2AB. A minus बच्चे
plus 2ab. In place of a, what I have to write down? A, sir. And in place of b? 1 by A. Very good. Minus 2 in place of a, and in place of b, 1 upon a. Same is equal to a minus 1 upon a whole square plus 2 into a into 1 upon a. A is cancelled. Here also cancel. A plus 1 upon a whole square. A minus 1 by a की वैल्यू 8. 8 का स्क्वायर 64. मैं सीधा लिख दूं बच्चे, एक शॉर्टकट मार दिया मैंने. Plus 2 is there. Minus 2 become plus 2 in this side. So a plus 1 upon a whole square becomes equal to 64 plus 4, 68. Now a plus 1 upon e. Square becomes square root. तो बाहर plus minus. 68 के factors 2, 34, 17. We get plus minus 2 root 17 is the answer. हमारे first part का आंसर आ गया. Now second part. Yes, Hasini. A square minus 1 upon a square becomes equal to? Sir, A plus 1A, A plus 1 by 1 A upon e. into A minus 1 by A. Yes, very good. Now a plus 1 by a we have already find. That is plus minus 2 root 70. Into a minus 1 by a is given. That is 8. Multiply these two. What we get? Sir, 16 root 17. Very good. This is our answer. Now, ninth sum. A square minus 3a plus 1 is equal to 0. We have to find a plus 1 upon e. And second part, a square plus 1 upon e square. Yes, Vignesh. हमने एक एमसीक्यू किया था, एफ पार्ट किया था ना? ओके हाँ सर. तो उसमें क्या किया था? सेम मेथड. व्हाट वी कैन डू इज हियर, फॉर्मूला अप्लाई करो. ए वाली टर्म, लीनियर टर्म को उस साइड ले जाओ. ए स्क्वायर प्लस 1, 3a minus 3a become plus 3 on that side. Is it okay? हाँ ओके सर. Now a को नीचे ले जाओ. a square plus 1 upon a is equal to 3. अब ऊपर 2 टर्म्स है, नीचे एक टर्म है, तो a square upon e plus 1 upon e is equal to 3. a से a कट गया, हमारे पास a plus 1 by a की वैल्यू आ गई 3. फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया. Now we have to find a square plus 1 by a square. चलो यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं. a square plus b square का विघ्नेश फॉर्मूला? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी. वो माइनस होता है बेटा यहाँ पे. a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है वो. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ड्राइव्ड फॉर्मूला. वैसे इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, बट ड्राइव्ड फॉर्मूला है. दिखाऊं? सर ये दो फॉर्मूलाज हैं, है ना? कल मैंने करवाए थे ना ड्राइव्ड फॉर्मूलाज. ये 2 फॉर्मूलाज हाँ, सर. आते हैं. तो इसमें से फर्स्ट वाला लगेगा कि सेकंड वाला लगेगा, वो डिपेंड करता है इस वैल्यू पे. यहाँ क्या गिवन है? आ गया हमारे पास. फर्स्ट वन. So that is a plus b whole square minus 2ab. So in place of a, you have to write down a. In place of b, 1 upon a. Minus 2 into a into 1 upon a. A is cancel. A plus a की 1 by a की वैल्यू 3 फाइंड की है, तो 3 स्क्वायर minus 2. What we get? 9 minus 2, that is 7 is the answer. Okay? समझ आ गया बच्चे? 9th सम कैसे करना है? ये 2 पार्ट्स हमें फाइंड करने हैं. तो यहाँ पे जो लीनियर टर्म होती है जिसकी पावर 1 होती है, उसको उस साइड लेके जाना है. फिर जो उसके साथ a मल्टीप्लाई है या x मल्टीप्लाई होगा वो नीचे चला जाएगा. फिर ऊपर 2 टर्म, नीचे सिंगल टर्म, तो दोनों के नीचे अलग अलग हम कर सकते हैं सेपरेटली.
ए स्क्वायर अपॉन ए, 1 अपॉन ए। यहाँ ए से ए कट गया, ए प्लस 1/a की वैल्यू आ गई 3। उसके बाद ये चीज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। नाउ नेक्स्ट वन, टेंथ सम इज अगेन सेम, a square minus 5a minus 1 is equal to 0. First part, we have to find a minus 1 by a. Second part, we have to find a plus 1 by a. Third part, we have to find a square minus b square, 1 by a square, sorry. Yes, Hargun, क्या करें इसमें? What we can do? सर सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा। नहीं बच्चे, ये 3 पार्ट फाइंड करने हैं। जब इस टाइप से इक्वेशन गिवन हो तो उस टाइम क्या करते हैं? लास्ट समय क्या किया था हमने 9th में, वही सेम इसमें करना है। क्या करेंगे? सर बताइए हरगुन। 9th में किया था ना, क्या किया था? ए वाली टर्म को उस साइड ले गए थे, तो यहां पे भी ए वाली टर्म्स को उस साइड ले जाना है। ए स्क्वायर माइनस 1 अपने प्लेस पे रहेगा और 5a उस साइड जाके प्लस 5a हो जाएगा। अब a मल्टीप्लाई ए कहां चला जाएगा? इसके नीचे। ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू 5। तो ऊपर 2 टर्म है, नीचे एक टर्म है, ए स्क्वायर अपॉन ए माइनस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू 5। यहाँ एक ए से ए कट गया, तो a माइनस 1 बाई ए की वैल्यू आ गई 5। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया हमारा। अब देखो, a माइनस बी हमारे पास है, a प्लस बी फाइंड करना है, सेकंड पार्ट। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हरगुन? सर ए प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर माइनस सर ए माइनस बी। नहीं बच्चे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab बिकम्स इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। कितनी बार बोला है ना बच्चे मैंने कि जब भी a माइनस बी या a प्लस बी दोनों में से एक टर्म है, दूसरी फाइंड करनी है, तो उस टाइम हमें ये फॉर्मूला लगाना है। अब a के प्लेस पे a, b के प्लेस पे क्या फिल करें हरगुन? b के प्लेस पे क्या फिल करें? सर 5 1 सर अपॉन ए। बच्चे क्या, कहाँ चल रहा है तुम? सम किए थे कल वाले? सर लास्ट होने की है। क्यों, मम्मी ने हाथ पकड़ लिया था कि नहीं करने सर निकल नहीं रहे। हैं? फिर मेरे से पूछे क्यों नहीं? ट्यूशन हम किस लिए रखते हैं? हम्म। सर बाकी बच्चे मैं वीडियो भी तो डाल देता हूँ, उसमें से भी देख सकते हो आप। यस यहाँ भी ए से कैंसिल। अब a प्लस 1 बाई ए हमें फाइंड करना है, सेम टू सेम रहेगा। -2, यहाँ a माइनस 1 बाई ए की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 5, तो इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 2। यहां से a प्लस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2, ये -2 साइड जाके +2 हो जाएगा। तो a प्लस 1 बाई ए, 25 प्लस 4 29, और स्क्वायर स्क्वायर रूट और बाहर प्लस माइनस। 29 में से कुछ भी बाहर नहीं आ रहा। तो अब थर्ड पार्ट, ये हमारे सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। अब थर्ड पार्ट, ए स्क्वायर माइनस 1 बाई ए स्क्वायर। यस हरगुन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बोलिए बच्चे हरगुन। तीसरा सम है आज जिसमें ये फॉर्मूला यूज हो रहा है हरगुन। सर सर ए प्लस बी फिर ए माइनस बी। हाँ, a प्लस 1 बाई ए इंटू, देखो b की वैल्यू 1 बाई ए है, तो b के प्लेस पे 1 बाई ए आ जाएगा, a माइनस 1 अपॉन ए। अब a प्लस 1 बाई ए की वैल्यू हमने ये वाली फाइंड की है, प्लस माइनस रूट 29 इंटू 1 बाई 1 माइनस 1 बाई ए की वैल्यू 5 फाइंड की थी हमने। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस 5 रूट 29 इज अवर आंसर। ये हमारा आंसर आ गया। समझ आ गया टेंथ सम? विघ्नेश, अथर्व,
हासिनी, कादिर, सब सारे सम्स में एक ही चीज चल रही है हमारी। सर तुम्हें मेथड भी बता दिया कि जब a माइनस बी फॉर्म गिवन है और a प्लस बी फाइंड करना है तो ये वाला फॉर्मूला यूज होना है। अब वो b a वन बाई ए की फॉर्म में है तो उससे कंफ्यूज नहीं होना। फॉर्मूला लिख के एक बार उसमें a और b की वैल्यूज फिल कर दो बस। ठीक है। नाउ 11 सम। 3x plus 4y 16 given है, xy 4 given है। Find the value of 9x squared plus 16y squared। हमने 9x squared plus 16y squared फाइंड करना है। अथर यस 9x squared, 9x squared को मैं क्या लिख सकता हूँ? 81x स्क्वायर सॉरी 3x स्क्वायर 3x होल स्क्वायर एंड 16y squared को 4y होल स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नहीं बन गया? मतलब हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है। यस सर तो क्योंकि देखो 3x यहाँ पे पड़ा है, हमें a प्लस बी गिवन है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करना है। तो बाय यूजिंग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बताइए। कल मैंने फॉर्मूलाज कहे थे ना कि 17 फॉर्मूलाज लर्न करने हैं बेटा, और ये ड्राइव्ड फॉर्मूला है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अपना कोई फॉर्मूला नहीं है, बट ड्राइव्ड फॉर्मूला। बताइए अथर्व, सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बताइए। ए प्लस बी एंड ए प्लस बी होल होल स्क्वायर। स्क्वायर माइनस 2ab। बच्चे फॉर्मूलाज लर्न कर लो, कर लो, अदरवाइज नहीं कर पाओगे सम। ठीक है। सर खाली यही वाला फॉर्मूला नहीं आ रहा। देखो दो है ना ये, अगर यहाँ पे मेरे पास माइनस होता तो मैं सेकंड वाला यूज करता। अब प्लस वाला है तो हमने फर्स्ट वाला यूज किया। अब ए के प्लेस पे हम 3x लिख देंगे ऐसे, बी के प्लेस पे जहां पे बी है वहां पे 4y, राइट साइड में भी ए के प्लेस पे 3x, बी के प्लेस पे 4y, -2 ए के प्लेस पे 3x, बी के प्लेस पे 4y। अब ये क्या बन गया? 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर। इसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। 3x प्लस 4y हमें 16 गिवन है, 16 का स्क्वायर। तीनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा बताइए सर जल्दी से। क्या? इन तीनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? 24xy। वेरी गुड। अब 16 का स्क्वायर होता है 256। 24 एज लाइक एक्स वाई की वैल्यू हमें गिवन है 4, तो यहां से क्या आ गया हमारे पास? 256 माइनस 96। 24 फोर जार 96 होता है। 6 माइनस 6 0, 15 माइनस 9 6, 160 इज अवर आंसर। 11 सम समझ आया बच्चे? विघ्नेश, हासिनी, हरगुन, कादिर, आगे बेटा। यस सर सर। नाउ कादिर, last sum of this exercise, that is a 12th sum। सर हाँ जी। सर पीछे 24 कैसे आया? 2 3 जा कितना होता है हरगुन? सर 6। 6 4 जा, सर 12। हाँ 6 4 जा। सर तेरे को मैं 24। टेबल, मैं फर्स्ट क्लास में बिठा दूंगा टेबल याद करने के लिए। सर 24। थोड़ा ध्यान से बेटा, ऐसी गलतियां करेगा तो मार्क्स कैसे आएंगे? नाउ यहां पे 12th सम, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स इज 5 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 73। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर। अब दो नंबर्स जो हैं डिफरेंस उनका 5 गिवन है। लेट नंबर्स बी x एंड y। तो फर्स्ट कंडीशन हमें क्या दी है, मतलब हमें क्या कुछ गिवन है? उन दोनों का डिफरेंस 5 गिवन है। तो कादिर मैं क्या लिखूं?
Sir, x minus y equals to 5. यस, डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्ट, दोनों का डिफरेंस 5। एंड सेकंड एक कंडीशन और दी है, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 73। Sir, x square plus y square equals to 73. या ये दो चीजें हमें गिवन है और हमें एक्स वाई दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है। इससे मैं कुछ नहीं कर सकता, ये उठा लो बाय यूजिंग। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बताइए कादिर। Sir, a plus b whole square minus 2ab. Sir, ये sir, क्या है? x minus y whole square ए माइनस बी होल minus. स्क्वायर। फॉर्मूला हम ए बी की फॉर्म में लिख रहे हैं ना, प्लस 2ab। मतलब मैंने बोला था कि डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। अब हमारे पास माइनस की वैल्यू थी, एक्स माइनस वाई, मतलब ए माइनस बी गिवन था, तो हमें ये सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। Yes, समझे? sir. अब जहां ए है वहां पे एक्स फिल कर दो, जहां बी है वहां पे वाई। एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस 2xy। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू ये रही 73 गिवन है। एक्स माइनस वाई की वैल्यू ये रही 5 गिवन है, प्लस 2xy एज वाई, क्योंकि एक्स वाई तो हमें फाइंड करना है, ये चीज फाइंड करनी है। 73, 5 का स्क्वायर 25, बिकम माइनस ऑन दैट साइड। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा ना, दूसरी साइड पे आके माइनस हो गया 2xy। 13 में से 5 माइनस किए 8, 6 में से 2 गए 4, 48 और 2 मल्टीप्लाई था, तो हासिनी इस साइड आके माइनस हो जाएगा ना। Sir, divide, sir. अब इसमें तो मिस्टेक नहीं करेगी कभी, है ना, जिंदगी में। xy becomes 24 is our answer। Answer. समझ आ गया? Yes, sir. विघ्नेश, विघ्नेश जी, वर्मा जी, आ गया समझ? हाँ सर, बहुत अच्छे से समझ आ गया। नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 4b। 4b में जो फॉर्मूलास, जो पहले वाले फॉर्मूलास थे वो तो यूज होनी होनी है। मैं एक बार फॉर्मूलास बता दिखा देता हूं एक बार। ये फॉर्मूलास, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। ये दोनों फॉर्मूलास, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ए प्लस बी, और एक ये कंडीशनल फॉर्मूला भी यूज होगा। फॉर्मूलाज मैंने कल तभी हम रिवाइज करवाए थे कि आप याद कर लो, ठीक है। बाकी इसका मैं स्नैप खींच के भेज दूंगा आपको। तो अभी स्टार्ट करते हैं 4b। 4b का फर्स्ट सम दैट इज एमसीक्यू ए पार्ट। तो यहां पे x is given 9, oh sorry, choose the correct choice। हमें ये गिवन है, चूज द करेक्ट आंसर। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 गिवन है, हमें x4 प्लस 1 बाई x4 फाइंड करना है। क्वेश्चन मार्क डाल दिया। विघ्नेश, जब इक्वेशन दे देते हैं तो क्या करते हैं हम? सर -2x को उस तरफ लेकर जाइए सर। वेरी गुड। नाउ जो x है यहाँ वो नीचे जा नीचे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर में एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स सेपरेट कर दो, एक्स ऊपर टू स्क्वायर टर्म बाय है नीचे एक एक्स टर्म है। 1/x इज इक्वल टू 2, x प्लस 1 बाई x इक्वल टू x इज 2, इक्वल टू। दिस वन। तो उससे पहले हम पहले लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। जहां ए है बाई यूजिंग, यहाँ पे लिख दिया करो कि ये फॉर्मूला है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, पहले हमारे पास स्क्वायर की वैल्यू आएगी, फिर उसका पावर 4 की वैल्यू आएगी।
तो a के प्लेस पे x, b के प्लेस पे 1/x -2 इंटू x इंटू 1/x। ये x से x कट गया, x प्लस 1/x की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4 -2, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। नाउ अगेन यही फॉर्मूला, बट अब a की वैल्यू x स्क्वायर, b की वैल्यू 1/x स्क्वायर, तो ये चीज लिखनी है। नाउ x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर, ये चीज यहां पे भी जहां x है वहां पे स्क्वायर हो जाएगा, 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर -2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर। ठीक है, स्पेस कम रहेगी, ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा। यहां पे क्या आ गया, x4 प्लस 1/x4, और इसकी वैल्यू कितनी फाइंड की हमने, 2, तो 2 का स्क्वायर -2, 4 -2, again we get 2 is the answer. 2, fourth option is the answer. ठीक है, x प्लस 1/x तक तो समझ आ गया, 2। उसके बाद बच्चे हमें पावर 4 चाहिए। पावर 4, x4 किसका है, स्क्वायर का स्क्वायर है, और ये किसका है, 1/x स्क्वायर का स्क्वायर है। तो पहले मैंने क्या किया, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड की इस फॉर्मूला से, फिर इसी फॉर्मूला का यूज करके a की वैल्यू मतलब x स्क्वायर का स्क्वायर, b की वैल्यू 1/x स्क्वायर उसका स्क्वायर, ये वैल्यू फाइंड की, तो ये हमारे आंसर आ गई। नाउ सेकंड पार्ट, a is given 5, b is given -2, c is given -3. We have to find a cube plus b cube plus c cube. This one, ये 11th आइडेंटिटी जो कंडीशनल आइडेंटिटी थी। इफ कंडीशन अगर a प्लस बी प्लस सी 0 होगा, एट दैट टाइम a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc होगा। अब यहां हमें ये चीज फाइंड करनी है ना, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये देखो, तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी फाइंड करो। a के प्लेस पे a की वैल्यू फिल कर दी 5, प्लस b के प्लेस पे b की वैल्यू -2, प्लस c के प्लेस पे c की वैल्यू -3। इसको कैलकुलेट करो, प्लस माइनस -2 प्लस माइनस -3, क्या आ गया हमारे पास, 5 - 5, वी गेट 0। वी नो दैट, यहां पे हम ऐसे पूरी कंडीशन लिखेंगे, वी नो दैट इफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, देन a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब किसके इक्वल, 3abc। 3, a की वैल्यू 5 गिवन है, इंटू 5 हो जाएगा, b की वैल्यू -2 गिवन है, c की वैल्यू -3 गिवन है। 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 33 जा 90, और माइनस माइनस प्लस हो गया, 90 इज अवर आंसर। दैट इज सेकंड ऑप्शन इज द आंसर। समझ आया, बताइए, बोलो। Yes, sir. हमें ए बी और सी की वैल्यू गिवन थी, फाइंड क्या करना है वो देखो। तो ये कौन सा फॉर्मूला था, ये कंडीशनल, मतलब a प्लस बी प्लस सी अगर 0 आता है तभी हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। नाउ सी पार्ट, दिस वन वी हैव टू फाइंड। हाँ जी, हासिनी, हमें जो फाइंड करना है, मैंने रफ वर्क में लिख लिया, इसका क्या फॉर्मूला बन रहा है जो फाइंड करना है, Sir, a square minus b square. इसके इक्वल, A plus b. A square plus b square. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल कैसे आ जाएगा, No, sir, no, sir. A plus b into a minus b. means if we can find x plus 1 by x and x minus 1 by x and multiply these two, we get this one। जो चीज हमें फाइंड करनी है,
अगर मैं x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू फाइंड कर लूं, x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू फाइंड कर लूं, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो यहां से सबसे पहले ये क्या फॉर्मेट गिवन है अथर्व? चलो हासिनी, हासिनी Sir, ये क्या गिवन है? a square plus b square. किसके इक्वल होता है? A square plus b square into minus 2ab. नो, a प्लस बी का होल स्क्वायर बोला करो बच्चे। Oh, okay, sir. दिस इज a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2a। Minus 2ab. मतलब दिस थिंग इज देयर, दिस वन वी हैव टू राइट डाउन। इसके प्लेस पे हम ये लिखेंगे, मतलब x प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू वन बाई एक्स, किसके इक्वल? 2 के। अब x प्लस वन बाई एक्स हमें फाइंड करना है, ये x से x कट गया, x प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर 2 minus 2 become plus 2 on that side. What we get? X plus 1 upon x whole square is equal to 4. And x plus 1 by x becomes equal to square root of 4. बाहर प्लस माइनस, तो x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस 2। मतलब आधा सम हमने सॉल्व कर लिया। अब हमें ये फाइंड करना है, इसका इसके साथ कोई फॉर्मूला है? जो चीज गिवन थी उसका इसके साथ फॉर्मूला है बच्चे कोई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आल्सो इक्वल टू, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिखा था, आल्सो इक्वल टू A minus b whole square plus 2ab. यस, मतलब a के प्लेस पे x, b के प्लेस पे वन बाई एक्स होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वन बाई एक्स इज इक्वल टू 2 हमें गिवन है। 2 माइनस 2, ये 2 साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो x माइनस वन बाई एक्स, जीरो, जीरो का स्क्वायर रूट जीरो होता है, प्लस माइनस लगाओ चाहे ना लगाओ, बिकॉज जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। अब नाउ एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस वन बाई एक्स इंटू एक्स माइनस वन बाई एक्स। एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू हमने प्लस माइनस 2 फाइंड की है, इसकी वैल्यू 0 फाइंड की है, तो 0 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए? Yes, 0 इंटू sir. समथिंग, 0 इंटू 0. 0 इज द आंसर। 0 हमारा आंसर आ गया, फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर। नाउ डी पार्ट, इफ x plus 3y plus 2z is given 0, we have to find x cube plus 27y cube plus 8z cube। हाँ जी विघ्नेश, ये क्या है? ये x, oops. दिस इज x, दिस इज x Yes. क्यूब, मतलब फर्स्ट टर्म का क्यूब। दिस इज 27y क्यूब, 3y का क्यूब है ना 27y क्यूब, Yes, sir. 3y का एंड cube 2z का क्यूब 8z cube. दिस वन, मीन्स Yes, sir. a प्लस b प्लस c 0 गिवन है हमें, Yes, sir. वही कंडीशनल आइडेंटिटी क्या थी विघ्नेश? वी नो दैट इफ a plus b plus c is equal to 0, then 3abc is no, sorry, a a plus cube plus, plus b cube plus c cube is equal to 3abc. very good. In place of a you can fill x, in place of b you can fill 3y, in place of c you can fill 2z, 3 a के प्लेस पे x, b के प्लेस पे 3y, c के प्लेस पे 2z। ये तो हमारा जो हमने फाइंड करना है वो चीज बन जाएगी। देखो 3 का क्यूब 27 होता है, y क्यूब, 2 का क्यूब 8 होता है, z क्यूब। हाँ जी हरगुन, इन चारों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? सर 18xyz। 18xyz, दैट इज आवर आंसर। इसका आंसर फाइंड करना था, 18xyz आ गया, थर्ड ऑप्शन इज द आंसर।
समझ आ गया बच्चे? सर यस। नाउ सेकेंड सम, सिंपल वन, वी सर हैव टू फाइंड द क्यू। हाँ जी सर लास्ट सम समझा तो सर। बच्चे, ये फॉर्मूला पता है ना कि a प्लस बी प्लस सी जीरो यस होता है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू 3abc होता है। अब यहाँ पे ए बी सी तीनों का सम जीरो था, तो इनका क्यूब का सम 3abc होगा। 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। यस यहाँ सर। ए के प्लेस पे x हो गया, बी के प्लेस पे 3y फिल हो गया, सी के प्लेस पे 2z फिल हो गया। राइट साइड में भी तो एबीसी के प्लेस पे ये वैल्यू फिल करेंगे। यस सर। अब इसको ओपन किया तो ये आ गया, जिसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। राइट साइड में इन चारों को मल्टीप्लाई करके 18xyz आ गया, मतलब इसका आंसर क्या आ गया? 18xyz। ठीक है, जो चीज हमें फाइंड करनी थी यस सर। उसका आंसर 18xyz आ गया बेटा। ये आप ना आइडेंटिटी पे फोकस नहीं कर रहे, ये वाली पे जो मैंने बॉक्स में कर दी। हमें a प्लस बी प्लस सी गिवन था, ठीक है, जीरो के इक्वल, मतलब ये चीज हमें गिवन थी ना जीरो के इक्वल। हमें फाइंड क्या करना है? यस ए सर। क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, मतलब इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब, ये फाइंड करना है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब भी फाइंड करना है ना। वो किसके इक्वल होता है? 3abc। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है, ये कंडीशन फुलफिल होती है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc फॉर्मूला है। हमने ए अरे के मामा प्लेस जी। पे एक्स, या यस सर। यहाँ पे क्यूब ओपन किए, एक्स क्यूब 3y का क्यूब 27y क्यूब 2z का क्यूब 8z क्यूब, राइट साइड में मल्टीप्लाई कर दिया, 18xyz आ गया हमारा आंसर। नाउ सेकंड सम, वी हैव टू फाइंड द क्यूब। फर्स्ट पार्ट 3a माइनस 2b, इसका होल क्यूब फाइंड करना है। अब आइडेंटिटी सिंपल, a माइनस बी का होल क्यूब। अथर्व, a माइनस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी बताइए। ए माइनस बी का होल क्यूब ना। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, सर अगर पर यहाँ प्लस की, आपने जो यहाँ लिखवाए प्लस, थे उसमें प्लेसेस स्विच कर दिया आपने। वो सॉरी, ए माइनस बी का होल क्यूब, ये कहाँ लिखवाया मैंने? अच्छा, ये रही ना, एक्चुअली मैं वो नीचे वाला देख रहा था। वो सिंगल सिंगल का क्यूब है बेटा, ये होल क्यूब है। हमें होल क्यूब फाइंड करना है ना। यस सर। अब ए के प्लेस पे 3a आ जाएगा, माइनस बी के प्लेस पे 2b का होल क्यूब। जहां ए है वहां 3a फिल कर दो, 3a का होल क्यूब, माइनस जहां बी है वहां पे 2b फिल कर दो, का होल क्यूब। माइनस 3, ए के प्लेस पे 3a आ जाएगा, बी के प्लेस पे 2b, और साथ में ए के प्लेस पे 3a माइनस बी के प्लेस पे 2b। अब इसको ओपन करो। यस अथर्व, 3a का क्यूब कितना होगा? 9 ए क्यूब, अरे सॉरी 27 ए क्यूब। माइनस 2b का क्यूब, 8 बी क्यूब। इन तीनों का मल्टीप्लाई, माइनस 18 ए बी। और ये सेम टू सेम आ जाएगा। 27a क्यूब माइनस 8b क्यूब माइनस 18ab को 3a से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 3 जा 54, a इंटू ए स्क्वायर b, और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 18 2 जा 36, a सिंगल है, b इंटू बी स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। कोई भी लाइक टर्म नहीं है, तो दिस इज अवर आंसर। कुछ भी नहीं, इससे ज्यादा इजी सम नहीं हो सकता। हमें a माइनस बी का होल क्यूब फाइंड करना है, फॉर्मूला पता है, ए के प्लेस पे 3a, बी के प्लेस पे 2b, और इसको कैलकुलेट किया बस।
इसका बच्चे मैं एक थर्ड पार्ट करवा रहा हूं, रिमेनिंग दोनों पार्ट्स आप खुद करोगे। 2a प्लस 1/2a होल क्यूब बाय यूजिंग, यस हरगोन, a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला। सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab सर ब्रैकेट ए प्लस बी। यस बिल्कुल सही। अब देखो a के प्लेस पे 2a है, b के प्लेस पे 1/2 है। जहां a है वहां 2a आ जाएगा होल क्यूब, जहां b है वहां पे 1/2a आ जाएगा होल क्यूब, प्लस 3, a के प्लेस पे 2a, b के प्लेस पे 1/2a, साथ में 2a प्लस 1/2a। 2a का क्यूब हरगुन सर 8। 8, सर 8 ही। 8a क्यूब, देखो पूरी ब्रैकेट, मतलब 2 का भी क्यूब है, a का भी क्यूब है। 2 का क्यूब 8 बन गया, a का क्यूब तो रहेगा ना, सर यस। ऊपर 1 का क्यूब 1, नीचे 2a का क्यूब। सर 8 ही क्यूब। वेरी गुड, ये 2a से 2a कैंसिल हो गया, ये ऊपर था ये नीचे था, मल्टीप्लाई था ना, तो 3। अब यहाँ पे क्या आ गया, 2a प्लस 1/2a। अगला स्टेप 8a क्यूब प्लस 1/8a क्यूब, 3 को 2a से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, सर 6 से। प्लस 3 को 1/2a से करेंगे तो सर 3/6 से। 2a ऊपर है बेटा, ऊपर वाली टर्म ऊपर से, नीचे से नहीं मल्टीप्लाई होती, सर यस। नीचे वाली नीचे से होती है, ऊपर वाली ऊपर से। सर दिस इज अवर आंसर। समझ आ गया बच्चे ये। नाउ थर्ड सम, a² प्लस 1/a² इज गिवन, दैट इज गिवन 47। हमने दो पार्ट फाइंड करनी है, एक तो a प्लस 1/a फाइंड करना है, दूसरा हमें a³ प्लस 1/a³ फाइंड करना है। हाँ जी, हासिनी, Yes. a² plus 1/a² is given. We have to find a plus 1/a. Means a² plus b² given है, हमें a plus b फाइंड करना है, कहने का मतलब कौन सी आइडेंटिटी, Sir, a square plus b square इज इक्वल टू into a minus a plus b minus 2ab whole होल square. स्क्वायर। नाउ a के प्लेस पे a आ जाएगा, b के प्लेस पे 1/a, मतलब 1/a², a प्लस 1/a माइनस 2a इंटू 1/a, किसके इक्वल, 47 की वैल्यू 47 थी, तो इसकी वैल्यू भी 47 ही होगी ना। तो a प्लस 1/a का होल स्क्वायर 47 माइनस 2 बिकम प्लस 2 ऑन दैट साइड, तो a प्लस 1/a का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 49 आ गई। तो a प्लस 1/a किसके इक्वल आ गया हासिनी, Sir, plus minus square root of 49. एंड स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज, 7 plus फर्स्ट 9. आंसर इज कमिंग। नाउ वी हैव टू फाइंड a³ प्लस b, a³ प्लस 1/a³। थर्ड ड्राइव आइडेंटिटी जो मैंने कल लिखवाई थी। अब a³ प्लस b³ फाइंड करना है ना, तो a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b, यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूँ a³ प्लस b³, ड्राइव आइडेंटिटी a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab, साथ में a प्लस b, जहां a है वहां पे a, जहां b है 1/a, राइट साइड में भी a प्लस 1/a होल क्यूब माइनस 3, a के प्लेस पे a, b के प्लेस पे 1/e, a के प्लेस पे a, b के प्लेस पे 1/e, a से a कट गया, a प्लस 1/a की वैल्यू प्लस माइनस 7 होल क्यूब,
-3 a + 1/a की वैल्यू +/- तो 7। हाँ जी, अरे इसके पहले वो 2 किधर गया? कौन सा 2? ये देखो ना 4। अच्छा उसको शिफ्ट किया। तभी वो नहीं 49 देखा। हुआ ना बेटा। सॉरी सर, वो नहीं अब देखा था। कोई बात नहीं, a³ + b³ का ये फॉर्मूला बच्चे, ए के प्लेस पे 1/a आ जाएगा, बी के प्लेस पे 1/a आ जाएगा। तो राइट साइड में भी ए के प्लेस पे a, बी के प्लेस पे 1/a। इस फॉर्मूला में जहां a है वहां पे a आएगा, जहां b है वहां पे 1/a फिल कर दिया। अब a + 1/a की वैल्यू +/- 7 फाइंड किया हमने। -3 a + 1/a की वैल्यू +/- 7। प्लस का क्यूब प्लस, माइनस का क्यूब माइनस। 7 का क्यूब होता है 343। 7 × 7 × 7 करके देखेंगे ना तो 343 आएगा। अब यहां थोड़ा सा ध्यान से करना है, यहां बच्चों को पता नहीं चलता कि क्या करना है। ये क्या है हासिनी, व्हाट इज दिस? माइनस ऊपर क्या है? प्लस माइनस यार नीचे है वो तो, माइनस तो नीचे है ना, ऊपर क्या है? प्लस। माइनस को प्लस से करेंगे यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस को माइनस से करेंगे नीचे प्लस हो जाएगा। ऊपर प्लस नहीं रखना, अब नीचे प्लस हो जाएगा। ये चीज ध्यान दो थोड़ा सा विघ्नेश, कि माइनस को प्लस से करेंगे ऊपर माइनस आ जाएगा, नीचे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 7। अब देखो, ऊपर प्लस माइनस, नीचे माइनस नीचे प्लस, तो ये अपोजिट साइन हो गए। इनको ऐड नहीं करना, इनको सब्ट्रैक्ट करना। अगर यहां भी प्लस माइनस होता और यहां भी प्लस माइनस है तो ऐड होते वो। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 13 - 7 6 3 336 +/- 336 इज आंसर, क्योंकि ये प्लस माइनस वाली बिगर थी वो टर्म। आ गया समझ? यस सर नाउ फोर्थ सम, a² + 1/a² इज देयर 18। सेम क्वेश्चन, a - 1/a फाइंड करना है, और सेकंड पार्ट वही सेम, a³ - 1/a³ फाइंड करना है। a² + b², a - b का होल स्क्वायर। अब मैंने शॉर्टकट मार दिया, समझ आया क्या किया? यहां मैंने प्रॉपर फॉर्मूला लिख के वैल्यूज फिल की थी। अब मैंने यहां पे सीधा कर दिया कि a² + b² किसके इक्वल, a - b का होल क्यूब स्क्वायर -2ab +2ab। ये वाली आइडेंटिटी, a² + b², a के प्लेस पे a, b के प्लेस पे 1/a, ये चीज +2 × a × 1/a। क्यों क्यों किया माइनस वाली आइडेंटिटी क्यों लगाई? क्योंकि हमें माइनस फाइंड करना था। a - 1/a का होल स्क्वायर, 2 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा 16, तो a - 1/a की वैल्यू √16 बाहर प्लस माइनस, a - 1/a आ गया हमारे पास +/4। पहला पार्ट है। अब a³ - b³, a³ - b³ की ड्राइव्ड आइडेंटिटी यूज होगी, ये लास्ट वाली फोर्थ वाली, a - b का होल क्यूब +3ab × a - b, a - b का होल क्यूब +3ab × a - b। जहां a है वहां a, जहां b है वहां 1/a, a के प्लेस पे a, b के प्लेस पे 1/a, +3 जहां a है वहां a, b के प्लेस पे 1/a, a - 1/a। ये a से तो a कट गया। a - 1/a की वैल्यू ये फाइंड की +/4 होल क्यूब +3, a - a की वैल्यू +/4। अब देखो 4 का क्यूब +/64 आ जाएगा। यहाँ प्लस को प्लस से करेंगे ऊपर प्लस ही रहेगा, प्लस को माइनस से करेंगे नीचे माइनस ही रहेगा, 4 3 = 12। अब यहाँ देखो, ऊपर प्लस नीचे माइनस, सेम साइन इज देयर, वी हैव टू ऐड, +/76 इज अवर आंसर। ठीक है बच्चे, यहां माइनस क्यों किया और यहां प्लस क्यों किया पता चल गया बेटा दोनों पार्ट्स में? वहां साइन क्या आ गया था, ऊपर प्लस यहाँ माइनस था, इसलिए ये दोनों सब्ट्रैक्ट हुए। यहाँ ऊपर प्लस है तो ऊपर प्लस ही है, नीचे माइनस है तो नीचे माइनस ही है, तो इसलिए ये दोनों प्लस हो गए, वहां सब्ट्रैक्ट हो गए। फिफ्थ सम,
a plus 1 upon a is given. p, we have to prove, हमें प्रूव करना है क्या चीज, a क्यूब प्लस 1 बाई a क्यूब p इंटू p स्क्वायर माइनस 3. ये लेफ्ट साइड क्या है, a क्यूब प्लस b क्यूब की फॉर्म ही है ना. तो कादिर, a क्यूब प्लस b क्यूब का ड्राइव्ड फॉर्मूला, सर a plus b whole cube minus 3ab into a plus b. वेरी गुड. अब जहां a है वहां a, जहां b है वहां पे 1 अपॉन a. a के प्लेस पे a, b के प्लेस पे 1 अपॉन a माइनस 3, जहां a अब a, b के प्लेस पे 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन a. अब ये चीज तो सेम रहेगी क्योंकि हमें प्रूफ करना है. a प्लस 1 बाई a की वैल्यू p का क्यूब, यहाँ a से a कट गया माइनस 3, a प्लस 1 बाई a की वैल्यू p हो गया, p कॉमन लो दोनों में से, p स्क्वायर माइनस 3. तो आ गया हमारा आंसर. यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड. समझे बच्चे. चलो, आपने फर्स्ट 5 सम करनी है. लास्ट एक्सरसाइज के भी 4 5 सम हैं, 8 से लेके 12 तक 5 सम उसके हैं, 5 सम इसके विद एमसीक्यू. ओके, नियर अबाउट 5 5 10 10 4 14 सम्स हो गए. फॉर्मूला की पिक्चर मैं भेज देता हूँ ग्रुप में, उसको बच्चे लर्न करना. ओके, जस्ट वेट, अभी भेजता हूँ. और कल 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 की छुट्टी है, मंडे को क्लास लगेगा बेटा. कल मैंने आउट ऑफ स्टेशन जाना है. एक सेकेंड, अभी भेज रहा हूँ बेटा. और ये फॉर्मूला सारे के सारे लर्न होने चाहिए, ठीक है. हाँ जी अथर्व, आप बेल क्यों मार रहे हो अथर्व. सर गलती से लग गया. अच्छा, गलती से कहा, आप फॉर्मूले याद कर लेना, ठीक है. मंडे को सबसे पहले फॉर्मूला सुनूंगा मैं. ये 17 के 17 फॉर्मूलाज आपको लर्न होनी चाहिए. 17 के भी 18 ही हो गए, नहीं 17 ही है. 12 प्लस 5, 5 ड्राइव्ड फॉर्मूलाज एंड 12 सिंपल फॉर्मूलाज. इसके बाद ही आगे शुरू करेंगे, नहीं तो मैं आगे शुरू नहीं करूंगा, तो कोई फायदा नहीं फिर करने का आगे, अगर लर्न नहीं हुए तो. मैंने पिक्चर भेज दिया, उसको लिख लो, अपने सामने स्टडी टेबल पे लगा लो और उसको अच्छी तरह लर्न करो. ओके, चलो मिलते हैं मंडे को, कल की छुट्टी है बच्चे. बाय सर. ओके, बाय बाय बेटा.